امریکہ کے ایران کے جنوبی علاقوں پر مسلسل 12ویں رات بمباری۔ تازہ حملوں میں خوزستان، بوشہر اور ہرمزگان صوبوں کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان میں رام شہر کے ایک اسپارک پلانٹ پر بمباری کی گئی۔ آواز کے نواحی علاقوں اور ساحلی شہر ماشہر میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بوشہر اور ہرمزگان صوبے میں آبن ہرمز کے اہم ساحلی قصبے سیرک میں بھی دھماکے۔ عراق کی سرحد پر شلمچہ سرحدی گزرگاہ کے قریب حملوں میں 2 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا ایران کی مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی کارروائی۔ حملوں میں کویت کے علی السلام ایئر بیس پر امریکی فوج گودام، پیٹریٹ میزائل دفاعی نظام اور امریکی MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ۔ الادینی بیرکس میں امریکی فوجیوں کے رہائش گاہوں اور ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے۔ جانی نقصان کے ساتھ ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کو بھاری نقصان کی اطلاع۔ حملوں کا ہدف کویتی عوام نہیں، صرف امریکی فوجی اڈے ہیں۔ پاسداران انقلاب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر حملے کی دھمکی۔ ایران نے آبن ہرمز میں کسی بھی تجارتی جہاز پر حملہ کیا تو پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔ تہران میں موجود پاور پلانٹ امریکی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان۔ ہماری دفاعی پالیسی بالکل واضح ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو سخت ترین رد عمل دیں گے۔ دشمن کی مدد یا سہولت کاری کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کو جواب۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین جوہری تعاون کا معاہدہ۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب میں سویلین جوہری پروگرام اور ممکنہ یورینیم افزودگی کی سہولت کے قیام کی راہ ہموار۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات، خوشحالی اور علاقائی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرے گا جس سے جوہری پھیلاؤ کا خطرہ پیدا ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عمان کے وزیر خارجہ کی منیلا میں ملاقات۔ پاکستان اور عمان کا 2 طرفہ تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اظہار اطمینان۔ دونوں ممالک کا اعلیٰ سطح روابط اور عوامی کاروباری تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ عمانی وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز کی منیلا میں ملاقات۔ تجارت اور سرمایہ کاری، کھیلوں اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے اور اعلیٰ سطح تبادلوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ علاقائی بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF حکام سے واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ معاشی اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی معاشی پیش رفت، EMF اور RSF پروگرام پر بات چیت۔ IMF حکام نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ نے مالی استحکام، زر مبادلہ ذخائر، معاشی بہتری کے اقدامات اجاگر کیے۔ ٹیکس اصلاحات، توانائی، نجکاری اور برآمدی ترقی سمیت اہم شعبوں پر بھی تفصیلی گفتگو۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن ڈی سی میں ایگزم بینک کے صدر اور چیئرمین جان جوانوویک سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ طویل مدتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور تجارت میں اضافے کے لیے خصوصی بات چیت۔ فریقین کا ٹرانزیکشنز، فوکل پرسنز کی تقرری اور اسٹریٹجک فریم ورک کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر جنید انوار کی چائنا ریلوے الیکٹریفیکیشن انجینئرنگ گروپ کے نائب صدر سے بیجنگ میں ملاقات۔ چین کے ساتھ ٹرانسپورٹ تعاون مزید مضبوط بنائیں گے۔ جدید ٹرانسپورٹ نیٹ ورک قومی معیشت کو مستحکم کرے گا۔ بندرگاہوں کی جدید ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پائیدار انفراسٹرکچر سے علاقائی تجارت کو فروغ ملے گا۔ جنید انوار چودھری۔ مسلم لیگ نون خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون نے عوام سے جو وعدے کیے وہ نبھائے۔ آزاد کشمیر میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے۔ آزاد کشمیر کے عوام علاقے کی ترقی کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا چڑھوئی کوٹلی میں مسلم لیگ نون کے شمولیتی جلسے سے خطاب۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے متعلقہ حلقوں کے کنوینرز کو
آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے متعلقہ حلقے کے کنوینرز کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں تیز بارشیں اور سیلابی صورتحال۔ تیز بارشوں، فلیش فلڈ، سیلابی ریلیں، گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے باعث حادثات، 18 افراد جاں بحق 19 زخمی، مجموعی طور پر 28 گھروں کو نقصان۔ پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے آپس میں رابطے میں ہیں، امدادی سرگرمیاں جاری۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 17 افراد جاں بحق کے 107 زخمی ہو گئے۔ نالا ڈیک، نالا بسنتر، نالا بئی میں طغیانی، شکرگڑھ کے قریب دریائے راوی میں سیلابی پانی میں پھنسے 170 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا کامیاب ریسکیو آپریشن۔ ہیڈ مرالہ میں اونچے درجے کا سیلاب، 2,24,496 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ ہیڈ قادر آباد میں نچلے درجے اور ہیڈ خانکی میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ گجرات میں گزشتہ 12 گھنٹے سے مسلسل بارش، گوجرانوالا میں 190، نارووال میں 151، سیالکوٹ 172، منڈی بہاؤدین 140، حافظ آباد 96، گجرات 95 اور لاہور میں 78 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ صدر آصف علی زرداری کی مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام وفاقی و صوبائی اداروں کو ہائی الرٹ اور امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور ضلع انتظامیہ کو ممکنہ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات کی مسلسل نگرانی کا حکم۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں صورتحال پر خصوصی نظر رکھنے کی ہدایت۔ سیاحوں اور حساس علاقوں کی آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور۔ نئی دلی میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج اور مظاہرین پر پولیس تشدد کے خلاف مظاہرے مزید شہروں تک پھیل گئے۔ تعلیمی بے ضابطگیوں اور پیپر لیکس پر طلبہ حکومت سے احتساب کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنماؤں کی حمایت، احتجاج کے دوران گرفتاریوں، تشدد اور سیکیورٹی اقدامات پر تنقید۔ انسانی حقوق تنظیموں کی جانب سے پرامن اختلاف رائے کو دبانے پر تشویش کا اظہار۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور لاہور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعظم کا امیر العظیم کے انتقال پر گہرے دکھ و رنج کا اظہار۔ مرحوم کے بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ امیر العظیم صاحب بصیرت سیاستدان تھے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم پاکستان ٹیلی ویژن کے مقبول اور یادگار ڈرامے اینک والا جن سے متاثر اے آئی سے تیار کردہ پہلی اردو فیچر فلم اینک والا جن 24 جولائی سے ملک بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار۔ بچوں سمیت ہر عمر کے ناظرین کے لیے ایک منفرد اور دلچسپ سینمائی تجربہ۔ پی ٹی وی کی ڈیجیٹل اور براڈ کاسٹ حقوق کے ساتھ فلم کی ملک گیر کامیابی کے لیے شاندار تشہیری مہم کا آغاز۔ بچوں اور بڑوں کو مسحور کرنے کے ساتھ ملک کی فلم انڈسٹری میں نیا باب رقم ہونے کی توقع۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2026-27 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ 11 اگست میں ملتان میں نئے سیزن کا آغاز۔ ورلڈ کپ 2027 کی تیاری بھی پلان کا حصہ۔ قائد اعظم ٹرافی گولڈ اور سلور 1 نومبر سے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں پروموشن اور ریلیگیشن برقرار۔ ریجنل ٹیموں کی تعداد 18 سے بڑھا کر 20۔ سیالکوٹ اور پشاور کی بھی 2 ٹیمیں شامل۔ انڈر 19 ریڈ بال اور ون ڈے ٹورنامنٹ سمیت T20 کپ بھی شیڈول میں شامل۔ اسلام آباد میں وسطی ایشیائی والی بال چیمپئن شپ ایشیا کی بہترین ٹیمیں ایکشن میں۔ دوسرے روز بھی 3 میچز، سری لنکا اور نیپال کی ٹیمیں مد مقابل۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ازبکستان اور قازقستان کے درمیان مقابلہ دن 1 بجے ہوگا۔ میزبان پاکستان اور بنگلہ دیش دن 3:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ بہت عمدہ گیپ ڈھونڈا پہل نے، 6 نمبر کی جرسی میں پہل کو آپ کوئٹہ میں چھٹا آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آغاز 26 جولائی سے ہوگا۔ 90 ٹیمیں ٹائٹل کی دوڑ میں شامل ہوں گی۔ 4 مختلف وینیوز پر فٹ بال کے سنسنی خیز مقابلے ہوں گے۔ افتتاحی میچ بلوچ کلب نوشپی اور افغان کلب چمن کے درمیان ہوگا۔ فائنل 10 اگست کو ایوب اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور ٹور ڈی فرانس کا 17واں مرحلہ بیلجیم کے جیسپر فلپسن کے نام 174.7 کلومیٹر کا مرحلہ فلپسن نے 3 گھنٹے 41 منٹ 13 سیکنڈز میں مکمل کیا۔ 17 مراحل کے بعد سلوینے کے تادیج پوگاچر کی مجموعی برتری برقرار۔ پوگاچر کو ریمکو ایوانوپول پر 4 منٹ 32 سیکنڈز کی سبقت حاصل۔
Mazeis, directeur marketing Europe Sud-Est de Continental, et de l'autre côté du podium, eh bien c'est monsieur le maire de Voiron, Julien Paula. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और बेहतर अपडेट लिए मैं आपके साथ रोमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी, खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया एआई और ऑटोनमस सिस्टम्स के नए दौर में दाखिल हो रही है और हम किसी से कम नहीं। वेलकम टू इंडस रास एक्सपो 2026। पाकिस्तान को रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम्स में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का नेशनल प्लेटफॉर्म। ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिफेंस रोबोटिक्स से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिजिकल एआई, एग्रीटेक और मुख्तलिफ सेक्टर्स में नेक्स्ट जेन इनोवेशन। आए देखें लाइव टेक्नोलॉजी, ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज, रोबो वॉर्स, एक्सपर्ट डिस्कशंस और पाकिस्तान के ब्राइटेस्ट इनोवेटर्स, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। फ्यूचर का सिर्फ सोचो मत, उसका हिस्सा बनो। इंडस रास एक्सपो 2026, पावरिंग पाकिस्तान's autonomous future। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तारी मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने बहरी असासों और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बशमूल हक़ के दिफ़ा में ताकत के कानूनी इस्तेमाल का हक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के खिलाफ हौसी मलेशिया की मुसलसल धमकियों और बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के ऐलानात की शदीद मज़म्मत करता है। हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात इलाकाई सलामती, जहाज़रानी की आज़ादी, क़वायद पर मबनी बहरी निज़ाम और आलमी तिजारत के तसलसल के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ़ जहाज़ों को धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया और बिरादर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करें, ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, बैनुल अक़वामी बहरी जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाएं और खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ दें। अमरीकी अफवाज ने जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर फ़ज़ाई हमले किए हैं और हमलों में ख़ुज़स्तान, हरमज़गान और बोशहर सूबे के मुतादिद शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से जनूब मगरबी सूबे खुज़स्तान में 3 शहरों पर हमले किए गए, जिनमें रामी शहर भी शामिल है, जहाँ एक एक्सपोर्ट प्लांट को निशाना बनाए जाने के इत्तलात हैं। आवाज़ से मुल्हिका इलाकों राहम साहली शहर माशहर में भी धमाके सुने गए हैं। सुबह हरमज़गान के शहर सिरिक में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बूशहर के गवर्नर ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि बूशहर जोहरी बिजली घर के करीब वाक़ एक बिजली के सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद शहर में कई घंटों बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। इराक की सरहद पर शलमचा सरहदी गुजरगाह के करीब मिसाइल हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान पर मुसलसल 12वीं रात हमलों में बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरे तबाह करने को, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफा के एहसासों को निशाना बनाया गया। सैनकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि इन हमलों से सिविलियन मल्लाहों और तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत मज़ीद कम हुई है। सैनकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने इस माह खुश्की पर मौजूद ईरान के दर्जनों अस्करी मकामात को निशाना बनाया, जबकि समुद्र में ईरान के खिलाफ नाकाबंदी का दोबारा आगाज़ कर दिया है। बयान में कहा गया है कि आज तक सैनकॉम ने 9 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा है और एक जहाज़ को नाकारा बनाया है, ताकि जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहाँ से रवाना होने से रोका जा सके। सैनकॉम के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी एहलकार पूरे मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं और अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए हर वक्त चौकस और तैयार हैं।
ایران نے امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے کیے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کویت میں علی السالم ایئر بیس پر موجود فوجی ساز و سامان کے ایک بڑے گودام، پیٹریٹ میزائل دفاعی نظام اور امریکی MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو حملے میں تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ العدیدی بیرکس میں امریکی فوجیوں کے رہائش گاہوں اور ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا اور ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو بھاری نقصان پہنچا۔ IRGC نے یہ بھی کہا کہ کویت میں ایک مواصلاتی ٹاور کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کویتی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ایران نے نہیں کی بلکہ امریکہ نے کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے حملوں کا ہدف کویت کے عوام نہیں، صرف امریکی فوجی اڈے ہیں۔ IRGC نے کہا کہ ہم ان علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن پر امریکی فوج قابض ہے۔ کویتی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں فضائی دفاع فعال ہے۔ کویتی فوج کے جنرل اسٹاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سنی جانے والی دھماکوں کی آوازیں دراصل ایرانی ڈرونز کو فضا میں مار گرانے کی کارروائیوں کا نتیجہ تھیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ متعلقہ حکام کی جانب سے جاری کردہ سیکیورٹی اور حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے آبنہ ہرمز میں کسی تجارتی جہاز پر حملہ کیا تو پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تہران میں موجود پاور پلانٹ امریکی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ حملہ چاہے میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار سے ہو، امریکہ ہر ایسے حملے کے بدلے ایران کے ایک پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جلد تیار ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں آبنہ ہرمز کی ضرورت نہیں، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری دفاعی پالیسی بالکل واضح ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو سخت ترین رد عمل دیں گے، دشمن کی مدد یا سہولت کاری کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی مذاکرات ٹیم کے سربراہ محمد باقر کالباف نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی تحفظ کی کوئی ضمانت نہ ہوئی تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں باقر کالباف نے کہا کہ اگر ایرانی تیل فروخت نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کا بھی تیل فروخت نہیں ہو سکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جنگ کے بعد یا تو سب محفوظ رہیں گے ورنہ کوئی نہیں رہے گا۔ محمد باقر کالباف نے لکھا کہ اگر ہماری سلامتی یقینی نہیں ہے تو پھر کسی اور کا انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے واضح رہنا چاہیے کہ آبنہ ہرمز کی سلامتی امریکی فوج کی عدم موجودگی سے مشروط ہے۔ باقر کالباف نے مزید کہا کہ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال اب جنگ سے پہلے والی نہیں رہے گی۔ My family, son of Dr. Tipu Sultan. Perhaps Rehan Hashmi is not here. Brother Ergul Kadak, the Honorable Consul General of Turkey, diplomats from Indonesia, Korea, Maldives, and Russia. Distinguished guests, commanders from Pakistan Navy, doctors, businessmen, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. بڑے کنجوس ہیں جواب دینے میں، لگ رہا ہے رشیا میں آ کر خطاب کر رہا ہوں یا چائنا میں لوگوں کو سلام کے معنی نہیں پتہ۔ السلام علیکم، آپ کو پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے طرف سے تو یہ ہے، دو چیزوں میں ہم کافی آج کل کمزور ہو گئے، ایک وعلیکم السلام کہنے میں اور ایک قومی ترانہ۔ اگر ہمیں قومی ترانہ نہیں آتا تو پھر پاکستان میں رہنے کا کیا فائدہ؟ تو جب قومی ترانہ ہو، بیک گراؤنڈ میوزک کیوں نہ ہو، آپ خود بلند آواز سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یو آر پارٹ آف دس سسٹم۔ بہت ہی شاندار، مجھے تقریر لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھا ہے میرے آفس نے، مگر مختلف دوستوں نے جو باتیں کیں اس سے میں بہت متاثر ہوا اور میں نے کہا دل کی بات کی جائے، لکھ کے کیا کرنا۔ تو زہیر نصیر صاحب
impressive and fantastic organization. آپ نے بہت اچھے محنت کی, بہت اچھے لوگوں کو, ٹیم کو جمع کیا. آپ کے ساتھ ڈاکٹر عابد شیخ صاحب, ان کی کاوشوں کو میں بہت ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا یہاں کے جو نگراں ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے. میں آپ سے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو روشنی اس ہال میں لایا گیا ہے, یہ خوبصورت چہرے دیکھنے میں مجھے کافی تکالیف, ہاں دانیال ناگوری صاحب, دیکھنے میں بہت پرابلمز ہو رہا ہے. ایک تو اسٹیج پہ ڈائریکٹ لائٹ آ رہی ہے, میرے آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. دوسرے کہیں پہ بالکل سفیدہ ہے نیلے رنگ کا, اور کہیں پہ اندھیرا ہے. یہ چاند چہرہ, ستارہ آنکھیں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. تو برائے مہربانی اس کانفرنس کو کانفرنس کی طرح, اب اس سائٹ پہ بالکل اندھیرا ہے, محسوس ہو رہا ہے کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. تو جو بھی آرگنائزر ہیں وہ اس کو پلیز ٹھیک کر دیں تاکہ کوئی امپیکٹ خراب نہ جائے. اتنا شاندار یہ کانفرنس ہو رہا ہے, اس میں اس طرح کی لائٹنگ کی گئی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میرے آنکھ پہ جو روشنی پڑ رہی ہے جس سے میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ الگ ہے. کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, اور جو مجھ سے پہلے کہہ گئے ابھی, پریونٹیو از بیٹر دین دا کیور, میرے خیال سے رضا صاحب نے یہ بات کی تھی. تو 14 صدی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز میں صفائی کی بہت ضرورت ہے, ہر شعبے میں صفائی کی ضرورت ہے. اور جب صفائی کے ساتھ ہم سوچیں گے اپنے لباس میں, اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے ورک پلیس پہ, اپنے مختلف جگہوں پہ ہم اگر صفائی کو ترجیح دیں گے تو پھر بہت ساری مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. بہت سارے ہاسپٹلز میں ہم نے پتہ کیا, سنا, کہاں تک سچ ہے کہاں تک سچ نہیں, کہ پوسٹ کیئر آپریشن ٹھیک نہیں تھا, اور پوسٹ کیئر آپریشن میں صفائی نہیں تھی, گندگی تھی, تو جس کے وجہ سے کیجویلٹی ہو گیا یا مرض میں وہ شفا نہ ملا جو ملنا چاہیے تھا. تو ہمیں صفائی پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے. گورنر سید محمد نہال ہاشمی ہیلتھ کیئر ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ساحل الشقیق سے 70 ناٹیکل مائل دور جہاز میں آگ لگنے کی اطلاع ہے. برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن کا کہنا ہے کہ ٹینکر کے کپتان کے مطابق جہاز میں میزائل لگنے سے آگ لگی. عملہ آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے. سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا. جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی, تاہم عملہ محفوظ ہے. ٹینکر کے کپتان کے مطابق میزائل لگنے سے آگ لگی ہے. کسی بھی جانی نقصان یا ماحولیاتی اثرات رپورٹ نہیں ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور مشرق وسطیٰ میں سپلائی سے متعلق خدشات کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. برینٹ نارتھ سی کروڈ کی قیمت تقریباً 6 ہفتوں بعد پہلی بار $95 فی بیرل سے تجاوز کر گئی. تاہم کاروبار کے اختتام پر یہ $94.07 فی بیرل پر بند ہوئی. دوسری جانب امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت تقریباً 3% اضافے کے ساتھ $86.83 فی بیرل تک پہنچ گئی. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین جوہری پروگرام کے قیام کے لیے ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے. امریکی محکمہ توانائی کے مطابق معاہدے میں پرامن جوہری تعاون اور عدم پھیلاؤ کے حفاظتی اقدامات شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے پرامن مقاصد کے لیے جوہری تعاون سے متعلق معاہدہ
123 पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे को पुरअमन जौहरी ताउन का माहदा करार दिया गया है, जिसके बारे में अमरीकी महकमा तवानाई का कहना है कि इससे सऊदी अरब के जौहरी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को वसी रसाई हासिल होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बुसैद के दरमियान मनीला में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों वज़राए खारिजा ने आला सतह तबादलों, तिजारत और सरमायाकारी, अवामी रवाबित, कारोबारी ताल्लुकात और कसीरुलजहती फोरम्स पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। ओमानी वज़ीर खारिजा ने खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जंग बंदी बरकरार रखने, बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स के दरमियान मनीला में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और तिजारत और सरमायाकारी, खेलों और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों वज़राए खारजा ने इदारा जाती रवाबित, बाकायदा राबतों और आला सतह तबादलों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा ने हालिया अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए मकालमे, कशीदगी में कमी और इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मनीला में आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया और बाकायदा आला सतह रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पायदार अमन व इस्तेहकाम और सलामती के हुसूल के लिए मुकालमा, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन DC में IMF की आला क़यादत से मुलाकातें की, जिनमें पाकिस्तान की मईशत, जारी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF हुक्काम से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू की। मुलाकातों में टैक्स और तवानाई के शोबों में इस्लाहात, निजकारी, कर्ज़ों के बेहतर इंतज़ाम और आलमी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल हुआ। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती इस्तेहकाम, बेहतर ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफ़े को अहम कामयाबियाँ करार देते हुए पायदार माशी तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एग्ज़िम बैंक के सदर और चेयरमैन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने एग्ज़िम बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के हवाले से फ्रेमवर्क तश्कील दिए जाने की तजवीज़, कसीर साला लेन देन के निज़ाम और अमरीकी फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, आलात और सर्विसेज के फ़रोग़ में सहूलतकारी को सराहा। मुलाकात में तवील मुद्दती मनसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी, कॉटन, कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन समेत मुतादिद ज़रई इशनास में तिजारत के इजाफे पर खुसूसी बातचीत की गई, जबकि दोनों अतराफ़ का करीब मुद्दत ट्रांजैक्शन, फोकल पर्सन तैनात करने और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक किया गया। बीजिंग में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने चाइना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इंजीनियरिंग ग्रुप के नायब सदर से मुलाकात की, जिसमें ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जदीद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी मईशत और इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बंदरगाहों की जदीद तरक्की को तरजीह दे रही है और चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की जाएगी। मुलाकात में चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार भी किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने सैमसंग के वफ़द से मुलाकात में पाकिस्तान को मोबाइल फ़ोन मैनुफैक्चरिंग और बरामदात का मरकज़ बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने सैमसंग को पाकिस्तान में तैयार मोबाइल फ़ोन्स अफ्रीका समेत आलमी मार्केट्स में बरामद करने की दावत दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सनती सरमायाकारी, वैल्यू एडिशन और बरामदात के फ़रोग़ के लिए सहूलियात फराहम करेगी। मुलाकात में सैमसंग ने मोबाइल फ़ोन रिफर्बिशमेंट मराकज़ के क़याम की तजवीज़ भी पेश की, जबकि टैक्स और टैरिफ से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया।
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अज़रबैजान में तुर्की की नायब वज़ीर माहौलियात फातिमा वर्नक से मुलाकात की, जिसमें आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP31 के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों, तवानाई की बचत, बिजली के इस्तेमाल के फ़रोग और रीसाइकलिंग के शोबों में मुश्तरका प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ग्रीन फील्ड और ग्रीन यूनिवर्सिटी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि COP31 के मौके पर दोनों ममालिक मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात का ऐलान करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी समेत मुतादिद जदीद तहकीकी मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि टेक्नोलॉजी अब कौमी सलामती का नागुज़ीर हिस्सा बन चुकी है और हुकूमत जदीद तहकीक, इख्तिराअ और डिजिटल सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत की मुकम्मल वैल्यू चेन का मालिक बनने की जानिब बढ़ रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी कौमी तरजीह है। इस्लामाबाद में रास एक्सपो 2026 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी और नौजवानों की जदीद तरबियत पर भरपूर सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिफाई इदारे और सनती शोबा मिलकर डिजिटल जिद्दत को फ़रोग दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ में सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सिंध हुकूमत के वफ़द से बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह के वफ़द ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सरमायाकारी, नौजवानों की फ़नी और तकनीकी महारतों, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने बरतानवी वफ़द को सिंध हुकूमत के अवामी फलाह, इलेक्ट्रिक बसों, पिंक स्कूटीज़, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर और नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के इक़दाम से आगाह करते हुए बरतानवी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी और बरतानवी जामियात को अपने कैंपस कायम करने की दावत दी। बरतानवी वफ़द ने सिंध हुकूमत के तरक्याती और अवामी फलाह के मनसूबों को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। पोलैंड के वफ़द ने इस्लामाबाद में NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का जायज़ा लिया। वफ़द की क़यादत पोलैंड की वज़ारत दाखिला के बैनुल-अक़वामी नुमाइंदा ने की। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ़द को पाकिस्तान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम और हंगामी रद्द-ए-अमल के तरीक़ेकार पर ब्रीफ किया। पोलैंड के वफ़द ने पाकिस्तान के आफात से निपटने के निज़ाम को सराहते हुए ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास रावलपिंडी में हुआ, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब, बैरिस्टर दानियाल और सरदार नसीम ने की। इजलास में रावलपिंडी डिवीज़न की 4 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों, पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली ने शिरकत की। शुरका ने पोलिंग स्टेशन की सतह तक तैयारियों का जायज़ा लिया, जबकि हल्का कन्वीनर्स को जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई। मरियम औरंगज़ेब ने अहदेदारान को पेशगी इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद जलसे ने साबित कर दिया है कि कश्मीर मोहम्मद नवाज शरीफ का है। पंजाब मॉडल के तर्ज पर कश्मीर में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मिस्र के कौमी दिन के मौके पर सदर अब्दुल फताह अल सीसी और बरादर अवाम को मुबारकबाद का पैगाम दिया। एक बयान में सदर ममलिकत का कहना था कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और एतमाद पर मबनी दरीना खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा शराकतदारी समेत कसीरुल-जहती फ़ोरम्स में ताउन और अफ़ाम व तफ़हीम की रवायत को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त, दिफ़ा और अवामी सतह पर रवाबित समेत मुतनव्वे शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन इंतहाई हौसला अफजा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान मिस्र के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए इस शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलकत ने हालिया इलाकाई तनाज़े के हल के लिए दोनों ममालिक की क़यादत के फ़ाल राब्ताकारी को सराहा और इस एतमाद का इजहार किया कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दोस्ती का रिश्ता आने वाले बरसों में मज़ीद मुस्तहकम होगा।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, एनडीएमए ने 22 से 24 जुलाई के दौरान शदीद मानसून बारिशों और मगरबी हवाओं के बाइस दरियाओं, नदी नालों और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। इदारे के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों के बाइस अचानक सैलाब, पहाड़ी नदी नालों में तूफ़ानी और शहरी सैलाब का खदशा है। पंजाब में मियांवाली, डीजी खान और राजनपुर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गिरदर, हुंजा, नगर, गिलगित, दयामिर, गानशे, शिगर, अस्तोर, घुरमंग और रोंदू के दरियाओं, आबी गुजरगाहों और मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान है। दरियाए रावी, बलोकी के मकाम पर आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान कम दर्जे के सैलाब का इम्कान है। एनडीएमए ने मुतालिका इदारों को हसास मकामात की निगरानी, हंगामी टीमों की तैयारी और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली जरदारी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। एक्स पैगाम में सदर मुमलिकत ने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू और इमदादी इक़दाम तेज़ करने के साथ एनडीएमए, पीडीएमएस और मकामी इदारों को मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की हिदायत करते हुए नशेबी इलाकों को मुमकिना सैलाब के पेश नज़र पेश की तैयारियों का हुक्म दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बारिशों से जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और आवाम को इंतबाह किया कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सदर मुमलिकत ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रेस्क्यू और एमरजेंसी एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेश की तैनात करने की भी हिदायत की। मंडी बहाउद्दीन में मानसून की शदीद बारिशों के दौरान बासा का हंगामी बुनियादों पर नकासी आब का ऑपरेशन जारी है। शहर में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 244 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बासा की 7 मशीनरी और 70 वर्कर्स ने 24 घंटे खिदमात अंजाम देते हुए मुख्तलिफ नशेबी इलाकों से बारिशी पानी की नकासी यकीनी बनाई जा रही है। नाज़रीन, मियांवाली में दरियाए सिंध के कटाव से मुतासरा इलाके शरीफ वाली में डिप्टी कमिश्नर ने और दीगर इंतजामी अफसरान ने दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जल्द ही हिफाजती बन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बादशाह डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया और रेस्क्यू 11, 22 समेत तमाम मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की। शेखोपुरा में 1 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने शहर को जल थल कर दिया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। ताहम नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िला इंतज़ामिया, वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला फौरी तौर पर नकासी आब के लिए मुतहर्रिक हो गया। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा राना अदील तसव्वुर ने मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजेबल वाटर वर्क्स का दौरा करके नकासी आब के इक़दाम का जायज़ा लिया। बादशाह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसमें मानसून के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ननकाना साहिब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस दरियाई रावी और नाला डेक में पानी की सतह बुलंद हो रही है। मजीद जानते हैं जावेद अहमद मुआविया से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। नवाज शरीफ की हदायत पर ज़िली इंतजामिया की तरफ से नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतलका महकमे काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रायना हमीद समेत तमाम मुतलका ज़िली अफसरान खुद फील्ड में मौजूद हैं और निकासी आब के लिए जारी काम और नाला डेक में पानी के बहाव में रुकावटें खत्म करने के लिए जारी सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। तमाम मशीनरी हम लोगों ने, इक्विपमेंट, मशीनरी, मैन पावर जो है हम लोगों ने डिप्लॉय की हुई है और 24 घंटे हम फील्ड को मॉनिटर भी कर रहे हैं। जो हमें लोग शिकायत बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पानी का ब्लॉकेज है, उसको भी हम फौरी तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि विदिन
1 घंटा हमारी मशीनरी और हमारे रिसोर्सेज वहाँ पे पहुँच के उस मसले को हल कराएं। मुसलसल बारिश की वजह से दरिया रावी और नाला डेक में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरिया रावी में इस वक्त हेडवल्लोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। ज़िली इंतजामिया के तमाम मुतलका महकमे मुमकिन सैलाबी सूरत से निपटने के लिए हाई अलर्ट है और तमाम सूरत की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ज़िली इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस चिन्योट में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। नशेबी इलाके मुतासर होने लगे हैं। ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अली से। भारत की जानिब से अचानक दरिया चनाब में पानी छोड़ने के बाद चिन्नौर के मकाम पर सैलाब की सूरत हाल संगीन हो रही है। महकमा आपाशी के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में पानी में मजीद इजाफे का इम्कान है। सैलाबी पानी छन्नी महर शाह, बुरज अली, चक सरकार, ठट्टा महमूद और दीगर नशीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है, जबकि मियांवाल के मकाम पर दरिया के कटाव ने भी खतरात बढ़ा दी हैं। ज़िले इंतजामिया मुतासरा आबादियों में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली में मसरूफ़ है। ज़िला चिन्नौट की तहसील बवाना के इलाके सामल और दरिया चनाब चिन्नौट में 2 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज सुबह सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जहाँ इस्रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा हैं और इलाकाई अमन व सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म ने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया और कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और ममलिकत के बिरादर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। उन्होंने ममलिकत सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा किया। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है PTV न्यूज़ के नुमाइंदे शराज दुरानी से। जी शराज दुरानी, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज सुबह सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली इस गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दाम के तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जहाज़रानी और तिजारती नक़्ल व हमल की आज़ादी के लिए ये ऐसे जो हमले हैं वो न सिर्फ ख़तरा है बल्कि इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को भी इससे नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म ने बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा किया और खुद इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और ममलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने ममलिकत सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अमन, सलामती, इस्तेहकाम और बहरा अहमर, आबन हुर्मुज़ और वसी तर खित्ते में कानूनी समंदरी तिजारत की जो बिलातातुल रवानी है उसके लिए ममलिकत और आलमी बिरादरी के साथ करीबी जो ताउन है वो जारी रखेगा। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा है। वज़ीर आज़म ने खादिम हरिमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली के जज्बात इज़हार भी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज दुरानी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज सुबह सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और उन्होंने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा किया है और साथ ही कहा कि वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और ममलिकत के बिरादर अवाम के साथ मजबूती और आज़म के साथ खड़े हैं।
उन्होंने मुमलिकत सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तार इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा भी किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। वफाकी वज़ीर खालिद हुसैन मक्सी की ज़ेर सदारत ECO साइंस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का छठा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। खालिद हुसैन मक्सी ने कहा कि पाकिस्तान को ECO साइंस फाउंडेशन के छठे बोर्ड इजलास की मेज़बानी पर फ़ख्र है। ECO साइंस फाउंडेशन इलाकाई तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी और रुकन ममालिक के ज़रूरियात के मुताबिक अमली और नतीजा खेज़ प्रोग्राम तश्कील किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर हुसैन सिमाई ने कहा कि ईरान ECO साइंस फाउंडेशन की माली मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि जामियात नौजवानों को फ़िक्री, साइंसी और तहक़ीक़ी बुनियाद फराहम करती हैं, जबकि तलबा ने मुस्तक़बिल में मुल्क की बागडोर संभालनी है। हज़ारा यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान डीन्स, प्रोफेसर्स और शोबा सरबराहान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ डिग्रियाँ देने वाले इदारे नहीं बल्कि इल्म, तहकीक, किरदार साजी और इंसानियत की खिदमत के मराकज़ होनी चाहिए। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रेक्टर डॉक्टर अहमद साद अल अहमद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए तालीमी और तहकीकी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर होते हुए माहौल के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बरकरार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकली 2 अरब 31 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। सिर्फ जून 2026 में 151.4 मिलियन डॉलर मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। मालियाती, तवानाई, फूड कम्युनिकेशन और तंबाकू के शोबे मुनाफे की मुंतकली में नुमाया रहे, जबकि बरतानिया, चीन और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में सरगर्म रहे। तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली में तिब्बी कैंप और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप से खिताब में सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और दीगर ने अपने खिताब में तिब की अफादियत और जड़ी बूटियों की अहमियत और उत्बा से नुस्खा जात के साथ साथ तशखीस पर अबूर हासिल करने पर जोर दिया। वर्कशॉप के मौके पर उत्बा में शील्ड्स भी तकसीम की गई। तिब्बी कैंप में 1000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। रोबोट्स, मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स और ख़ुदकार निज़ाम की दुनिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो 2026 का आगाज़ पाक चीन चाइना फ्रेंडशिप में हो गया है। मज़ीद तफसील जानिए सईद वज़ीर से। क्या आपने कभी एक छत के तले रोबोट्स, ड्रोन्स, मसनूई ज़हानत और मुस्तकबिल की जदीद टेक्नोलॉजी को एक साथ देखा है? नहीं? तो आए आपको दिखा देते हैं। वजारत IT व टेली कम्युनिकेशन के तहत इग्नाइट और नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के ताउन से इस्लामाबाद में 2 रोजा इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो 2026 जारी है। रिस्पॉन्स आपके सामने है कि इतनी यंग जनरेशन यहाँ पर आई है और इस चीज के अंदर इंटरेस्ट ले रही है। नुमाइश में दिफाई रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सनती ऑटोमेशन, ज़री रोबोट्स, मसनूई ज़हानत पर मबनी सिस्टम्स और जदीद इख्तिरात तवज्जो का मरकज रहे। जो हम आज अपना प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं वो है मिक्स्ड रियलिटी सुपर मशाक का फ्लाइट सिमुलेटर, जो कि डुअल सीट है। तो इसमें आपको 6 डॉफ का मोशन सिस्टम मिलेगा, कंट्रोल लोडर्स मिलेंगे। मुल्क भर से जामियात, तहकीकी इदारों, स्टार्टअप्स, सनत, सरमायाकारों और पॉलिसी साजों की बड़ी तादाद एक्सपो में मौजूद हैं, जहां नई टेक्नोलॉजीज, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मौके तलाश किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट चिप डिज़ाइन सेंटर बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा हम सारे के सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने वर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर SMT, IoT, चिप डिज़ाइन, AI, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, ये सब वर्टिकल्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा अंडर वन रूफ ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। ये ब्रेन से चलने वाले हम प्रोस्थेटिक लिम्स बनाते हैं और इसमें होता ये है कि जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है, तो हमारे फ़ोन से अपनी ऐप से वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं एंड देन फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको दे देते हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इससे बाइक भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, खाना भी खाते हैं, लिखते भी हैं, और ये पाकिस्तान में लोकली मेड है और अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक्सपो इस बात का पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी की दौड़ में अपना मजबूत मकाम बनाने के लिए तैयार है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अदायगियों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया है। ज़िला भावल नगर में भी मुस्तहिक ख़वातीन को नई किस्म की अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट के जरिए जारी हैं। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने अदायगियों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया है। डिजिटल वॉलेट सिस्टम के जरिए मुस्तहिक ख़वातीन को इनकी इमदादी रकूम बराह रास्त फराहम की जा रही है ताकि अदायगियों का अमल मजीद शफाफ, महफूज और आसान बनाया जा सके। गवर्नमेंट ने अकाउंट बनाए ने बहुत अच्छा काम किया है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ बहुत खुश हैं। पहले जी डवैज वाले कटते सी 15,000-1500 कट लेंदे सीगे, हुण जी अकाउंट च आंदे हुण बड़ा अच्छा काम किया ने। जिला बहावल नगर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 1,56,316 रजिस्टर्ड मुस्तहिक ख़वातीन हैं। इनकी सहूलत के लिए जिला भर में 135 डिजिटल वॉलेट पॉइंट्स काम कर रहे हैं। इसकी रकम जो है 14,500 है और इस दफ़ा चूँकि वॉलेट अकाउंट्स हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने, बैंक ने सर्विस चार्जेस रखे हैं। तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि वो अपनी किस्त वसूल करें। डिजिटल निज़ाम मुतारफ होने के बाद डिवाइस ऑपरेटर की गैर कानूनी कटौतियों का मौसर खात्मा हुआ है। ख़वातीन ने इस शफाफ निज़ाम को सराहते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इसे एक मुस्बत इकदाम करार दिया। डिजिटल वॉलेट निज़ाम ने अदायगियों को मजीद शफाफ, महफूज और आसान बना दिया है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। शदीद गर्मी में ठंडा और साफ़ पानी हर शख्स की ज़रूरत बन जाता है, लेकिन तहसील समंदरी के इलाके अड्डा सलोनी झाल में नहर किनारे मौजूद कुदरती नलके आज भी अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखे हुए हैं। शफाफ, मीठा और कुदरती तौर पर ठंडा पानी रोज़ाना सैकड़ों अफराद की तवज्जो का मरकज़ बनता है। इस दिलचस्प मकाम की तफसील जानते हैं शहबाज मदनी से। खुश जायका, शफाफ और ठंडा ठार, ये है समंदरी के इलाका अड्डा सलोनी झाल के कुदरती नलकों का पानी, जिसने बरसों से अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर रखी है। रोजाना दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपनी प्यास बुझाते बोतलों और कैन में ये कुदरती मीठा पानी भर के अपने घरों को भी ले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ये मुकाम शहरियों के लिए खुसूसी कशिश इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे जितने भी फिल्टर प्लांट है उनसे सबसे अच्छा पानी है, कुदरती ठंडा पानी होता है। आपको इसके यूज करने के लिए बर्फ की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं यहाँ से पानी भरते भी हैं घरों के लिए और घर में जाके इसको इस्तेमाल करते हैं। अहले इलाका का कहना है कि ये पानी ना सिर्फ खुश जायका और शफाफ है, बल्कि हल्का और हाजमे के लिए भी मौजू महसूस होता है। यही वजह है कि तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक यहाँ आने वालों का सिलसिला जारी रहता है। शदीद गर्मी के मौसम में जहाँ लोग ठंडे पानी की तलाश में होते हैं, वहीं मेरे पीछे जमीन से निकलने वाला ठंडा और मीठा कुदरती पानी शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ शहबाज मदनी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, समंदरी।